Hello students, welcome to part 2 of the poem A Prayer for My Daughter. We were on stanza 6. So let me read the stanza. May she become a flourishing hidden tree, that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound, nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel. Oh, may she live like some green laurel, rooted in one dear perpetual place. So, now the poet is saying that he wants her daughter to be like a flourishing hidden tree. Now, linnet means a singing bird, magnanimities means generosity, perpetual means everlasting. So, let's read each and every line and understand it. May she become a flourishing hidden tree. The poet prays that his daughter may grow into a person who is strong, healthy, and deeply rooted in good values, just like a flourishing tree. The word flourishing suggests that growth, prosperity, and vitality. Now, बच्चों पोएट चाह रहा है कि उनकी बच्ची कैसी बने, एक ऐसा इंसान बने जो कि स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और अपनी वैल्यूज में बहुत डीपली रूटेड हो, जैसे कि एक फ्लरिशिंग ट्री होता है ना. फ्लरिशिंग से यहाँ मतलब है ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और वाइटैलिटी. द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज हिडन. व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री? विच मीन्स इट इज नॉट सीकिंग अटेंशन और फेम. मतलब उसको कोई फेम नहीं चाहिए, कोई अटेंशन नहीं चाहिए, वो छुपा हुआ है और अपना काम बस अच्छी तरह से कर रहा है. Yeats wants his daughter to possess quiet strength and inner beauty rather than being obsessed with public admiration. कि वो चुपचाप से अपना काम करता रहे, अपनी स्ट्रेंथ को क्वाइट रखे, अपनी इनर ब्यूटी को अंदर संभाल के रखे, ना कि वो ऑब्सेस्ड हो जाए कि लोग मेरी तारीफ करें. राइट, पब्लिक एडमायरेशन से ऑब्सेस्ड नहीं होनी चाहिए. शी शुड बी हिडन, मतलब अपना काम पीछे से कर रही है, कोई उसको फेम नहीं चाहिए. The tree symbolizes stability, peace and continuous growth. Okay, tree किसको symbolize कर रहा है? Stability, peace and continuous growth. Now next line, that all her thoughts may like the linnet be. So what is a linnet? A linnet is a small songbird known for its sweet and cheerful singing. एक bird है जो कि गाना गाता है, गाना गाने वाला, singing bird. सो एंड ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, और उसके जितने भी ख्याल है वो एक चीयरफुल गाना गाने वाली बर्ड जैसे हो. द पोएट विशेस दैट ऑल हिज डॉटर्स थॉट्स में रिजेंबल द लिनेट, प्लेजेंट, जॉयफुल, हार्मोनियस एंड फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी. तो पोएट चाहता है कि उसके थॉट्स कैसे हो, एक लिनेट जैसे हो, एक ऐसी चिड़िया जैसे हो जो सिर्फ स्वीट और चेयरफुल गाना गाती है. तो उसके थॉट्स प्लेजेंट होने चाहिए, जो कानों को अच्छे लगे. राइट, प्लेजेंट, जॉयफुल होने चाहिए, हारमोनियस होने चाहिए और हर एक नेगेटिविटी से फ्री होने चाहिए. Just as a linnet naturally sings beautiful songs, Yeats hopes that the positive and noble thoughts will come naturally to his daughter. So, Yeats होप कर रहा है कि ये जिस तरीके से नेचुरली गाना गाती है लिनेट, उसी तरीके से पॉजिटिव और नोबल नोबल थॉट्स, जो अच्छे थॉट्स और पॉजिटिविटी है, वो नेचुरली उसकी डॉटर में आ जाए. नेक्स्ट लाइन, एंड हैव नो बिजनेस बस डिस्पेंसिंग क्लाउड राउंड. The phrase means that her thoughts should have no purpose rather than spreading happiness and goodness. है ना, डिस्पेंस करती रहे हर जगह. The word dispensing means distributing or giving out. So Yeats wants his daughter to share joy, kindness, generosity and positivity wherever she goes. तो वो कह रहा है कि उसका कोई और काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करती रहे. क्या डिस्ट्रीब्यूट करती रहे? हैप्पीनेस और गुडनेस को, है ना, जेनरोसिटी को, काइंडनेस को, पॉजिटिविटी को. वो जहां जाए वहां ये चीजें स्प्रेड करे, शेयर करे उनसे. हर माइंड शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड विथ हेटरेड, जेलेसी और सेल्फ एम्बिशंस. उसके माइंड में हेटरेड, जेलेसी और सेल्फ एम्बिशन जैसी चीजें भरी हुई नहीं होनी चाहिए. ठीक है. देयर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड. The word magnanimities means generosity, nobility and greatness of spirit. The linnet spreads beautiful music through its song. Similarly, Yeats wants his daughter's thoughts
and words to spread kindness, encouragement and goodness. The phrase suggests that her speech should be uplifting and beneficial to others. The poet values inner nobility more than external beauty. तो अब ये लाइन जो है, देयर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड, मैग्नानिमिटीज का यहाँ मतलब है जेनरोसिटी, बहुत सारी जेनरोसिटी, बहुत अच्छे काम, नोबिलिटी और अपनी स्पिरिट की ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, है ना। तो लिनेट जिस तरीके से ब्यूटीफुल म्यूजिक स्प्रेड करती है अपने सॉन्ग के थ्रू, सिमिलरली यीट्स चाहता है कि उसकी डॉटर के थॉट्स और वर्ड्स क्या स्प्रेड करे, काइंडनेस, एनकरेजमेंट, गुडनेस, ये सब चीजें स्प्रेड करें, है ना, और वो दूसरों को अपलिफ्ट करने में हेल्प करे, है ना। उसकी स्पीच ऐसी हो, उसकी बातें ऐसी हो कि वो दूसरों को अपलिफ्ट करे। और पोएट किस चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, नोबिलिटी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है रेदर देन एक्सटर्नल ब्यूटी। Nor but in merriment begin a chase. So the poet hopes that if his daughter pursues any goal or ambition in life, she should do so with happiness and enthusiasm, rather than with greed, anger or selfishness. The word merriment means joy and cheerfulness. Nor but in merriment begin a chase. अगर वो chase begin करे तो सिर्फ merriment में करे। merriment का मतलब है joy और cheerfulness में। The chase symbolizes life's pursuit. लाइफ की जो pursuit होती है, वो क्या चीज pursue करना चाहती है, क्या ambitions है, क्या desires है। तो जब भी वो chase को, whenever she begins a chase, जब भी वो अपने desire, ambitions या pursuit के पीछे जाए, तो वो किस तरीके से जाए, joy और cheerfulness में। तो Yeats wishes her to approach life positively and joyfully. I'll just read these lines once again. The poet hopes that if his daughter pursues any goal or ambition in life, she should do so with happiness and enthusiasm rather than with greed, anger or selfishness. The word merriment means joy and cheerfulness. The chase symbolizes life's pursuits, ambitions and desires. And Yeats wishes her to approach life positively and joyfully. Nor but in merriment a quarrel. So similarly, if disagreement arises, quarrel मतलब लड़ाई झगड़ा, तो उसी तरीके से देखो, जिस तरीके से उसने अपने एम्बिशंस और डिजायर को खुशी और चेयरफुलनेस के साथ चेस किया था, उसी तरीके से अगर कोई क्वारल हो जाए, अगर डिसएग्रीमेंट हो, तब भी वो मेरीमेंट के साथ ही उसको हैंडल करे। सिमिलरली इफ डिसएग्रीमेंट arise, Yeats hopes that they will never become bitter or hateful. Even conflict should be handled lightly and without malice, है ना, किसी मलाल के बिना, है ना, लाइटली वो हैंडल कर सके हर कॉन्फ्लिक्ट को, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिटर या हेटफुल ना बने। द पोएट वॉन्ट्स हिज डॉटर टू मेंटेन अ चीयरफुल, फॉरगिविंग एंड बैलेंस्ड नेचर। उसका नेचर कैसा हो, चीयरफुल हो, खुश, हमेशा खुश रहने वाला हो, फॉरगिविंग हो, वो फॉरगिव कर सके ताकि उसके अंदर बिटरनेस और हेटफुलनेस ना आए, है ना, कोई मलाल ना रह जाए, और बैलेंस्ड नेचर का हो, ठीक है, उसका नेचर बैलेंस्ड हो। दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स Yeats' बिलीफ दैट हैप्पीनेस एंड काइंडनेस कैन प्रिवेंट हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeats का क्या बिलीफ, इस लाइन से हम बता सकते हैं कि हैप्पीनेस और काइंडनेस से आप हेट्रेड और रिजेंटमेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। नॉर बट इन मेरीमेंट अ क्वारल। नेक्स्ट लाइन, ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल। So poet now compares his daughter to a green laurel tree. In classical literature, the laurel tree symbolizes honor, victory, peace, endurance and stability. Okay, so the word green suggests freshness, vitality and everlasting life. So Yeats wishes his daughter a life that is fruitful, respected and enduring. तो Yeats क्या चाहता है कि may she live like some green laurel. लॉरेल क्या है, क्लासिक लिटरेचर में अगर आप जाके देखोगे तो लॉरेल ट्री का मतलब होता है, लॉरेल ट्री किसको सिंबलाइज करता है, ऑनर, विक्ट्री, पीस, एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी जैसी चीजों को, ठीक है। और ग्रीन का मतलब है सदाबहार, हमेशा फ्रेश रहने वाला, वाइटलिटी से भरा हुआ, एवरलास्टिंग लाइफ, ठीक है। सो Yeats wishes his daughter a life that is fruitful, respected and enduring, rooted in one dear perpetual place. So this stanza concludes with Yeats expressing his desire
that his daughter remain firmly rooted in a loving and stable environment, कि हमेशा एक ही जगह, एक ही लविंग और स्टेबल इन्वायरमेंट में फर्मली वो वहीं पे रहे, है ना. द फ्रेज वन डियर परपेचुअल प्लेस सजेस्ट अ हैप्पी होम, family stability or emotional security and lasting relationships. Okay, so unlike the chaos of the storm described earlier in the poem, this image represents permanence, peace and contentment. The poet hopes that his daughter will not be restless or unhappy but will enjoy a secure and fulfilling life. ना, तो rooted in one dear perpetual place का क्या मतलब है बच्चों? इस स्टैंजा, इस लाइन से इस स्टैंजा को कंक्लूड करते हुए यीट बता रहा है कि वो क्या चाहता है. वो चाहता है कि उसकी डॉटर हमेशा फर्मली रूटेड रहे एक लविंग और स्टेबल इन्वायरमेंट में. मतलब वो जहाँ रहे वो एकदम लविंग और स्टेबल इन्वायरमेंट में हमेशा वहीं पे रहे, स्टेबिलिटी के साथ सिक्योर रहे वो, है ना. वन डियर परपेचुअल प्लेस मतलब एक ही परपेचुअल प्लेस में रहे, मतलब एक हैप्पी होम हो और वो होम कभी बदले ना. फैमिली स्टेबिलिटी हो, उसी फैमिली में वो स्टेबिलिटी के साथ रहे, वहां कुछ डिस्ट्रेस ना हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो और लास्टिंग रिलेशन, वन डियर परपेचुअल प्लेस, वो ही रिलेशनशिप हमेशा के लिए रहे. अनलाइक द केयर, अब बाहर जो स्टॉर्म हो रहा है ना, जो पहले बताया गया है पोएम में, अनलाइक द केयर्स ऑफ द स्टॉर्म डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन द पोएम, दिस इमेज रिप्रेजेंट्स परमानेंस, पीस एंड कंटेंटमेंट. परमानेंस मतलब, परमानेंस का मतलब है कि वहीं पे रहना, परमानेंट है ये चीज, अनस्टेबल नहीं है, परमानेंट है. पीस है वहां और राहत है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है. ठीक है. द पोएट होप्स दैट हिज डॉटर विल नॉट बी रेस्टलेस और अनहैप्पी बट विल एंजॉय अ सिक्योर एंड फुलफिलिंग लाइफ. ये लास्ट लाइन से ही इसका पूरा मतलब बता सकते हैं. रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस मतलब एक ही जगह वो सिक्योर और फुलफिलिंग लाइफ जिए. तो इस स्टैंजा की समरी पढ़ लेते हैं. द पोएट विशेस फॉर हिज डॉटर टू ग्रो इनटू अ फ्लरिशिंग yet hidden tree, embodying a sense of tranquility and strength. He hopes her thoughts will be as cheerful as the singing linnet bird, filling her life with peace and joy. He desires her to steer clear of conflict and anger. Steer clear of conflict and anger मतलब वहां पे वो स्टेयरिंग ऐसा घुमाए कि कहीं पे भी कंफ्लिक्ट और एंगर ना हो उसकी लाइफ में, राइट. इंस्टेड एम्ब्रेसिंग स्टेबिलिटी, इंस्टेड वो किस चीज को एम्ब्रेस करे, किस चीज को गले लगाए, स्टेबिलिटी और रूटेडनेस को. इंश्योरिंग हर लाइफ इज बोथ सीरीन एंड फर्मली ग्राउंडेड. बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया है मैंने बच्चों. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले या प्रॉपर नोट्स बनाएं. ठीक है. ऑलरेडी मैंने पूरे नोट्स पिन कर रखे हैं. ऑल्सो यू कैन गो ऑन टू माई वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द नोट्स एंड स्टडी मटीरियल्स. अब इसी स्टैंजा का एनालिसिस कर लेते हैं हम. क्या कहना चाहता है पोएट. द हिडन ट्री सिंबलाइजेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. द लिनेट सिंबलाइजेस जॉय एंड हार्मनी. Yeats values peace and emotional balance. Rooted life means loyalty and permanence. And happiness comes from simplicity and peace. So these are the few analysis of this stanza. Now let's see the literary devices. There is a simile because thoughts like a linnet. Thoughts किसके जैसे हो, linnet के जैसे हो. Symbolism है laurel tree which is representing stability. So there is symbolism in that line. इमेजरी है क्योंकि फ्लरिशिंग हिडन ट्री जब कहता है तो हम इमेजिन करते हैं, राइट. टोन इज पीसफुल एंड होपफुल. देयर इज अ मेटाफर व्हेन वी से दैट शी शुड हैव रूटेड लाइफ. नाउ लेट्स गो एंड स्टडी स्टैंजा 7. My mind because the mind that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there's no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. So here choked means filled and assault and battery represents violent attack. So let me explain each and every line. My mind because the mind that I have loved.
So the poet begins this stanza by reflecting on his own experiences. He's talking about his own experiences, his thinking and reflecting upon his own experiences. He thinks about the people he has loved and admired throughout his life. Here, the mind that I have loved refers not merely to intelligence but to a person's way of thinking, character, values, and outlook on life. Yeats is looking back at the women and individuals he respected and cared for. His personal experiences now influence the advice and wishes he has for his daughter. Now, बच्चों वो अपने आप अपने एक्सपीरियंस की ओर देख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो याद कर रहा है उन लोगों को जिनको उन्होंने लव किया था, एडमायर किया था थ्रू आउट हिज लाइफ, है ना। और माइंड का, माई माइंड बिकॉज द माइंड डेट आई हैव लव्ड, यहाँ पे माइंड डेट आई हैव लव्ड का क्या मतलब है, उसने किसी की इंटेलिजेंस से प्यार नहीं किया था, है ना। माइंड का यहाँ से मतलब है उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका कैरेक्टर, वैल्यूज, वो जो जिंदगी के बारे में सोचते थे, देयर आउटलुक ऑन लाइफ, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो फिर से पीछे देख रहा है उन विमेन को या उन इंडिविजुअल्स को जिससे उसने प्यार किया था या जिसकी उसने परवाह की थी, है ना। और उसका जो अब पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वो अपनी डॉटर के लिए क्या एडवाइस या क्या विशेष चाहता है ना। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, द पोएट कंटिन्यूज स्पीकिंग अबाउट द काइंड ऑफ ब्यूटी ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड. This is not merely physical beauty but beauty combined with wisdom, kindness and good character. So throughout the poem, Yeats has repeatedly emphasized that inner beauty is more valuable than external attractiveness. Here he reflects on the qualities he has valued most in people. The word approved suggests that through experience and observation he has carefully formed his judgment about what constitutes true beauty. तो यहाँ ये लाइन है बच्चों, the sort of beauty that I have approved, ये पहले वाली लाइन से कनेक्टेड है. My mind because the mind that I have loved, the sort of beauty that I have approved. तो ये बोल रहा है कि मैं अपने ओन एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हुए ये बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मैंने सोचा है या प्यार किया है जिनको, है ना, कि जिस तरीके की ब्यूटी मैंने अप्रूव की है. तो पूरी पोएम में ईट्स बार बार रिपीटेडली एम्फेसाइज कर रहा है, रिपीटेडली बता रहा है कि वो उसका क्या मानना है कि इनर ब्यूटी मोर वैल्यूएबल है देन एक्सटर्नल अट्रैक्टिवनेस. बाहर की जो अट्रैक्टिवनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की इनर ब्यूटी, है ना. और अप्रूव्ड वर्ड से यहाँ क्या मतलब है, व्हाई ही हैज यूज्ड ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड. अप्रूव्ड मतलब है कि उसने जो अपने एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से एक जजमेंट बनाया है ना, कि किस बारे में जजमेंट बनाया है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड. प्रॉस्पर बट लिटिल हैज ड्राइड अप ऑफ लेट, है ना. Yeats observed that the type of beauty and goodness he admires seems to be disappearing from the society, है ना. ये क्या बोल रहा है कि जो जैसा मैंने इनर ब्यूटी, जैसे मैंने देखा था कि ब्यूटी क्या होती है, इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रॉस्पर तो करती है लेकिन अब ड्राइड अप ऑफ लेट, लेकिन आजकल सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना. Yeats observed that the type of beauty and goodness he admires seems to be disappearing from the society. सोसाइटी से अब ये चीज़ दूर होती जा रही है. The phrase prosper but little means that such noble qualities have not flourished or succeeded very much in recent times. The expression has dried up of late suggests that kindness, wisdom and genuine goodness have become rare, है ना, बहुत कम हो गई है. The poet feels disappointed by the moral decline he sees around him. This reflects Yeats' concern about the social and political turmoil of this era. तो ये बोल रहा है कि जिस तरीके की ब्यूटी को मैंने एडमायर किया, जिस तरीके की गुडनेस को मैंने एडमायर किया, अब ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे सोसाइटी से कम होती जा रही है ना. द प्रॉस्पर बट लिटिल का क्या मतलब है कि ऐसा नोबल कॉज है, नोबल क्वालिटीज, है ना, वो अब फ्लरिश नहीं होती है, वो ज़्यादा सक्सीड, ऐसे लोग जिनका दिल साफ होता है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हैं आजकल की दुनिया में, रिसेंट टाइम्स में, है ना.
तो जो काइंडनेस, विजडम, जेन्युइन गुडनेस थी वो अब बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गई, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज़माना बहुत खराब है। और इसलिए पोएट डिसअपॉइंट हो रहा है कि आजकल के ज़माने में कितना मॉरल डिक्लाइन हो गया है। जो मॉरल डिक्लाइन वो देख रहा है आसपास, उससे वो बहुत कंसर्न, डिसअपॉइंटेड है और कंसर्न है उस एरा के सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल को देखकर। येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट ना, फिर भी उससे लगता है, डिस्पाइट हिज डिसअपॉइंटमेंट, ईट्स हैज लर्नड एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, that hatred is one of the most destructive forces in human life. The phrase choked with hate is particularly very powerful. Hatred is compared to something that suffocates a person, preventing emotional and spiritual growth. The poet believes that hatred poisons the mind and destroys inner peace. तो कहता है चाहे जो भी है ना, ये अच्छाई आजकल दब गई है, ये वो लोग सक्सेस नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसे ऐसा पता है, येट ही नोस दैट टू बी चोक्ड विथ हेट, कि हेटरेट सबसे खराब है। उससे अगर आप चोक्ड विथ हेट हो, मतलब अगर आप बहुत सफोकेटेड हो हेट से, हेट भरा पड़ा है आपके अंदर, है ना, तो उससे आप बहुत सफोकेट हो जाओगे और आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा। मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, है ना, ये पिछली लाइन से मिला हुआ है। कौन सी लाइन? येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, मतलब अगर आप हेटरेट से चोक्ड हो, है ना, तो ये देखो, ईट स्टेट्स दैट अमंग ऑल द पॉसिबल मिसफॉर्च्यून्स अ पर्सन में फेस, कि जितने भी मिसफॉर्च्यून अगर किसी इंसान की लाइफ में आएंगे, हेटरेड उसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। पहले मैं रीड कर लेती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको। ईट स्टेट्स दैट अमंग ऑल द पॉसिबल मिसफॉर्च्यून्स अ पर्सन में फेस, हेटरेड इज परहैप्स द वर्स्ट. The phrase evil chances refer to unfortunate events, dangers, or negative experiences in life. The word chief means the greatest or most important. Thus, the poet believes that hatred is more dangerous than poverty, suffering, or failure because it destroys person's inner self. तो ये बोलता है कि हेटरेड से चोक होना मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, मतलब सबसे चीफ इविल चांसेस, मतलब जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए हैं, इविल चांसेस मतलब जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ है उसमें सबसे मेजर, सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट सबसे खराब है वो है हेटरेड. ओके, सो द पोएट बिलीव्स दैट हेटरेड इज मोर डेंजरस देन एनी ऑफ द इविल चांसेस, देन एनी ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक पॉवर्टी, सफरिंग और फेलियर. इन सब से भी सबसे ज़्यादा वर्स्ट है हेटरेड, because it destroys a person's inner self. If there is no hatred in a mind, the poet now presents a condition. अब ये if से वो condition बता रहा है. If a person's mind is free from hatred, that person possesses an inner strength that cannot be easily broken. A mind without hatred remains peaceful, balanced, and emotionally healthy. It suggests that happiness and stability begin with controlling one's thoughts and emotions. ये समझ आ गया कि कंडीशन है कि अगर माइंड में कोई हेटरेड ना हो तो क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है और इजीली हम ब्रेक नहीं होते हैं. ये कंटिन्यू लाइन थी बेटा. असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड. द फ्रेज असॉल्ट एंड बैटरी यूजुअली रिफर्स टू वायलेंट फिजिकल अटैक्स ना. हियर ईट्स यूजेस इट मेटाफोरिकली, है ना, मेटाफर यूज किया है यहाँ सॉल्ट एंड बैटरी का, टू डिस्क्राइब द पावरफुल फोर्सेस लाइक हार्डशिप्स, ट्रबल्स दैट लाइफ में ब्रिंग. द विंड सिंबलाइजेस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल वायलेंस और पर्सनल सफरिंग और लाइफ चैलेंजेस, है ना. डिफिकल्ट विंड क्या बता रहा है, हवा, जो बहुत तेज हवा बह रही है, उसका मतलब है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज या सोशल अनरेस्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो हो रहा था उस एरा में, पर्सनल सफरिंग, लाइफ की चैलेंजेस, ये सब विंड रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. सो जस्ट एज अ स्टॉर्म अटैक्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, हार्डशिप्स ऑल्सो अटैक्स ह्यूमन बींग्स. असॉल्ट एंड बैटरी मतलब जितने भी फिजिकल जो अटैक हो रहा है, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, किसका अटैक, किसका वायलेंट अटैक है, विंड का. और विंड का मतलब यहाँ से है
डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से या सोशल अनरेस्ट से या लाइफ के चैलेंजेस से, ठीक है। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, तो असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, ये पूरा एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस है कि चाहे कितने भी फिजिकल अटैक हो जाए, है ना, किसके अटैक, चाहे लाइफ के चैलेंजेस कैसे भी आ जाए, वो कभी भी एक लिनेट को लीफ से हटा नहीं सकती है। मतलब द स्टैंजा एंड्स विद अ ब्यूटिफुल इमेज। लिनेट क्या है? इज अ स्मॉल सिंगिंग वर्ड दैट सिंबलाइजेस इनोसेंस, जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस। द लीफ रिप्रेजेंट्स सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी। तो it says that if a person is free from hatred, even the strongest storms of life cannot destroy their inner peace. Just as linnet remains safely perched on a leaf despite strong winds, a peaceful and loving person can remain emotionally strong despite difficulties. This line expresses one of the poem's central messages. What is the one of the poem's central messages? That inner peace is stronger than external adversity. तो ये चारों लाइन, ये जितनी भी लाइंस थी वो इस लाइन पे आके खत्म हो रही है। ये एंड लाइन क्या बोल रही है? कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। ओके, दैट जो स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, जो किसका सिंबल है? पीस का, हैप्पीनेस का, है ना, वो लीफ से कभी अलग नहीं होती। लीफ का मतलब है स्टेबिलिटी या इमोशनल सिक्योरिटी से कभी अलग नहीं होती। उसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान हेट्रेड से फ्री है, उसके मन में हेट्रेड नहीं है, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ जाए लाइफ का, वो उनकी इनर पीस को नहीं हटा सकता, है ना, उसको स्टेबल रखता है, उसको सेफ रखता है एक इंसान को। अगर उसके अंदर हेट्रेड नहीं है तो लाइफ की कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आ जाए, वो अपनी इनर पीस में रहता है, ठीक है। और जैसे कि एक लिनेट सेफली पर्च रहती है एक लीफ पर डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसी तरीके से एक पीसफुल और लविंग पर्सन जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है डिस्पाइट ऑफ एनी ऑफ द डिफिकल्टीज। ओके, सो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मैसेज दे रहा है दैट इनर पीस इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सटर्नल एडवर्सिटी। बाहर कैसी भी एडवर्सिटी हो, लेकिन अंदर अगर आपके अंदर इनर पीस है तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो इस स्टैंजा को समराइज कर देते हैं। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन पीपल ही हैज़ लव्ड, जिनसे उसने प्यार किया उसके बारे में रिफ्लेक्शन है यहाँ पोएम में स्टार्टिंग में। ही फील्स दैट ब्यूटी अलोन हैज़ ब्रॉट लिटिल हैप्पीनेस। हेट्रेड इज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द ह्यूमन माइंड। अ पीसफुल माइंड कैन नॉट ईजिली बी डिस्ट्रॉयड एंड इनोसेंस प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सफरिंग। एनालाइज कर लेते हैं हम। यीट्स कनेक्ट्स हेट्रेड विद स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन, and beauty without peace becomes meaningless. Inner calm gives strength against difficulties. Love and peace preserve innocence, and hatred destroys happiness and relationships. Literary devices देख लेते हैं। metaphor यूज किया गया है यहाँ, जब हमने यूज किया था hatred choking the mind, so there is a metaphor here. Personification, wind attacking like a person attacks, so wind को personify किया हुआ है। सिंबलिज्म यूज किया है, लिनेट इज सिंबलाइजिंग इनोसेंस। टोन कैसा है? रिफ्लेक्टिव और फिलोसॉफिकल टोन है। देयर इज इमेजरी यूज्ड, वायलेंट विंड से हम इमेजिन कर सकते हैं वो सीन को। नाउ लेट्स रीड स्टैंजा 8। माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, prosper but little has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there's no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. So here choked means filled and assault and battery represents violent attack. So let me explain each and every line. My mind because the mind that I have loved. So the poet begins this stanza by reflecting on his own experiences. He's talking about his own experiences, his thinking and reflecting upon his own experiences. He thinks about the people he has loved and admired throughout his life. Here the mind that I have loved refers not merely to intelligence but to a person's way of thinking, character, values and outlook on life.
Yeats is looking back at the women and individuals he respected and cared for. His personal experiences now influence the advice and wishes he has for his daughter. Now, बच्चों वो अपने एक्सपीरियंस की ओर देख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो याद कर रहा है उन लोगों को जिनको उन्होंने लव किया था, एडमायर किया था थ्रू आउट हिज लाइफ, है ना। और माइंड का, माई माइंड बिकॉज द माइंड डेट आई हैव लव्ड, यहाँ पे माइंड डेट आई हैव लव्ड का क्या मतलब है, उसने किसी की इंटेलिजेंस से प्यार नहीं किया था, है ना। माइंड का यहाँ से मतलब है उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका कैरेक्टर, वैल्यूज, वो जो जिंदगी के बारे में सोचते थे, देयर आउटलुक ऑन लाइफ, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो फिर से पीछे देख रहा है उन विमेन को या उन इंडिविजुअल्स को जिससे उसने प्यार किया था या जिसकी उसने परवाह की थी, है ना। और उसका जो अब पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वो अपनी डॉटर के लिए क्या एडवाइस या क्या विशेष चाहता है ना। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, द पोएट कंटिन्यूज स्पीकिंग अबाउट द काइंड ऑफ ब्यूटी ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड. This is not merely physical beauty, but beauty combined with wisdom, kindness, and good character. So, throughout the poem, Yeats has repeatedly emphasized that inner beauty is more valuable than external attractiveness. Here, he reflects on the qualities he has valued most in people. The word approved suggests that through experience and observation, he has carefully formed his judgment अबाउट वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू ब्यूटी. तो यहाँ ये लाइन है बच्चों, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, ये पहले वाली लाइन से कनेक्टेड है. माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड. तो ये बोल रहा है कि मैं अपने ओन एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हुए ये बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मैंने सोचा है या प्यार किया है जिनको, है ना, कि जिस तरीके की ब्यूटी मैंने अप्रूव की है. तो पूरी पोएम में ईट्स बार बार रिपीटेडली एम्फेसाइज कर रहा है, रिपीटेडली बता रहा है कि वो, उसका क्या मानना है कि इनर ब्यूटी मोर वैल्यूएबल है देन एक्सटर्नल अट्रैक्टिवनेस. बाहर की जो अट्रैक्टिवनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की इनर ब्यूटी, है ना. और अप्रूव्ड वर्ड से यहाँ क्या मतलब है, व्हाई ही हैज यूज्ड ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड. अप्रूव्ड मतलब है कि उसने जो अपने एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से एक जजमेंट बनाया है ना, कि किस बारे में जजमेंट बनाया है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड. प्रॉस्पर बट लिटिल हैज ड्राइड अप ऑफ लेट, है ना. Yeats observed that the type of beauty and goodness he admires seems to be disappearing from the society, है ना. ये क्या बोल रहा है कि जो मैं, जैसा मैंने इनर ब्यूटी, जैसे मैंने देखा था कि ब्यूटी क्या होती है, इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रॉस्पर तो करती है लेकिन अब ड्राइड अप ऑफ लेट, लेकिन आजकल सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना. Yeats observed that the type of beauty and goodness he admires seems to be disappearing from the society. सोसाइटी से अब ये चीज़ दूर होती जा रही है. The phrase prosper but little means that such noble qualities have not flourished or succeeded very much in recent times. The expression has dried up of late suggests that kindness, wisdom and genuine goodness have become rare, है ना, बहुत कम हो गई है. The poet feels disappointed by the moral decline he sees around him. This reflects Yeats' concern about the social and political turmoil of this era. तो ये बोल रहा है कि जिस तरीके की ब्यूटी को मैंने एडमायर किया, जिस तरीके की गुडनेस को मैंने एडमायर किया, अब ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे सोसाइटी से कम होती जा रही है ना. द प्रॉस्पर बट लिटिल का क्या मतलब है कि ऐसा नोबल कॉज है, नोबल क्वालिटीज, है ना, वो अब फ्लरिश नहीं होती है, वो ज़्यादा सक्सीड, ऐसे लोग जिनका दिल साफ होता है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हैं आजकल की दुनिया में, रिसेंट टाइम्स में, है ना. तो जो काइंडनेस, विजडम, जेन्युइन गुडनेस थी वो अब बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गई, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है. और इसलिए पोएट डिसअपॉइंट हो रहा है कि आजकल के ज़माने में कितना मॉरल डिक्लाइन हो गया है. जो मॉरल डिक्लाइन वो देख रहा है आसपास, उससे वो बहुत कंसर्न, डिसअपॉइंटेड है और कंसर्न है उस एरा के सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल को देखकर. Yet knows that to be choked with hate, ना, फिर भी उससे लगता है, despite his disappointment, Yeats has learned an important truth.
that hatred is one of the most destructive forces in human life. The phrase choked with hate is particularly very powerful. Hatred is compared to something that suffocates a person, preventing emotional and spiritual growth. The poet believes that hatred poisons the mind and destroys inner peace. तो कहता है चाहे जो भी है ना, ये अच्छाई आजकल दब गई है, ये वो लोग सक्सेस नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसे ऐसा पता है, येट ही नोस दैट टू बी चोक्ड विथ हेट, कि हेटरेट सबसे खराब है उससे। अगर आप चोक्ड विथ हेट हो, मतलब अगर आप बहुत सफोकेटेड हो हेट से, हेट भरा पड़ा है आपके अंदर, है ना, तो उससे आप बहुत सफोकेट हो जाओगे और आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा। मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, है ना, ये पिछली लाइन से मिला हुआ है। कौन सी लाइन? येट नोस दैट टू बी चोक्ड विथ हेट मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, मतलब अगर आप हेटरेट से चोक्ड हो, है ना, तो ये देखो, Yeats स्टेट्स दैट अमंग ऑल द पॉसिबल मिसफॉर्च्यून्स अ पर्सन में फेस, कि जितने भी मिसफॉर्च्यून अगर किसी इंसान की लाइफ में आएंगे, हेटरेड उसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। पहले मैं रीड कर लेती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको। Yeats states that among all the possible misfortunes a person may face, hatred is perhaps the worst. The phrase evil chances refer to unfortunate events, dangers, or negative experiences in life. The word chief means the greatest or most important. Thus, the poet believes that hatred is more dangerous than poverty, suffering, or failure because it destroys person's inner self. तो ये बोलता है कि हेटरेड से चोक होना मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, मतलब सबसे चीफ इविल चांसेस, मतलब जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए हैं, इविल चांसेस मतलब जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ है उसमें सबसे मेजर, सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट सबसे खराब है वो है हेटरेड। ओके, सो द पोएट बिलीव्स दैट हेटरेड इज मोर डेंजरस देन एनी ऑफ द इविल चांसेस, देन एनी ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक पॉवर्टी, सफरिंग और फेलियर। इन सब से भी सबसे ज्यादा वर्स्ट है हेटरेड, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज अ पर्सन्स इनर सेल्फ। इफ देयर इज नो हेटरेड इन अ माइंड, द पोएट नाउ प्रेजेंट्स अ कंडीशन। अब ये इफ से वो कंडीशन बता रहा है। If a person's mind is free from hatred, that person possesses an inner strength that cannot be easily broken. A mind without hatred remains peaceful, balanced, and emotionally healthy. Yeats suggests that happiness and stability begin with controlling one's thoughts and emotions. ये समझ आ गया कि कंडीशन है कि अगर माइंड में कोई हेटरेड ना हो तो क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है और इजीली हम ब्रेक नहीं होते हैं। ये कंटिन्यू लाइन थी बेटा। Assault and battery of the wind. The phrase assault and battery usually refers to violent physical attacks. Here Yeats uses it metaphorically, है ना, metaphor use किया है यहाँ assault and battery का, to describe the powerful forces like hardships, troubles that life may bring. The wind symbolizes difficult circumstances, social unrest, political violence और personal suffering और life's challenges, है ना। डिफिकल्ट विंड क्या बता रहा है, हवा, जो बहुत तेज हवा बह रही है, उसका मतलब है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज या सोशल अनरेस्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो हो रहा था उस एरा में, पर्सनल सफरिंग, लाइफ की चैलेंजेस, ये सब विंड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो जस्ट एज अ स्टॉर्म अटैक्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, हार्डशिप्स ऑल्सो अटैक्स ह्यूमन बींग्स। असॉल्ट एंड बैटरी मतलब जितने भी फिजिकल जो अटैक हो रहा है, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, किसका अटैक, किसका वायलेंट अटैक है, विंड का। और विंड का मतलब यहाँ से है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से या सोशल अनरेस्ट से या लाइफ के चैलेंजेस से, ठीक है। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, तो असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, ये पूरा एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस है कि चाहे कितने भी फिजिकल अटैक हो जाए, है ना, किसके अटैक, चाहे लाइफ के चैलेंजेस कैसे भी आ जाए, वो कभी भी एक लिनेट को लीफ से हटा नहीं सकती है। मतलब द स्टैंजा एंड्स विद अ ब्यूटीफुल इमेज। लिनेट क्या है, इज अ स्मॉल सिंगिंग वर्ड दैट सिंबलाइजेज इनोसेंस, joy, peace and happiness.
The leaf represents safety, stability and emotional security. So it says that if a person is free from hatred, even the strongest storms of life cannot destroy their inner peace. Just as linnet remains safely perched on a leaf despite strong winds, a peaceful and loving person can remain emotionally strong despite difficulties. This line expresses one of the poem's central messages. What is the one of the poem's central messages? That inner peace is stronger than external adversity. तो ये चारों लाइन, ये जितनी भी लाइंस थी वो इस लाइन पे आके खत्म हो रही है. ये एंड लाइन क्या बोल रही है? कैन नेवर टियर द लिनेट फ्रॉम द लीफ. ओके, दैट जो स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, जो किसका सिंबल है? पीस का, हैप्पीनेस का, है ना, वो लीफ से कभी अलग नहीं होती. लीफ का मतलब है स्टेबिलिटी या इमोशनल सिक्योरिटी से कभी अलग नहीं होती. उसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान हेट्रेड से फ्री है, उसके मन में हेट्रेड नहीं है, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ जाए लाइफ का, वो उनकी इनर पीस को नहीं हटा सकता, है ना. उसको स्टेबल रखता है, उसको सेफ रखता है एक इंसान को. अगर उसके अंदर हेट्रेड नहीं है तो लाइफ की कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आ जाए, वो अपनी इनर पीस में रहता है. ठीक है. और जैसे कि एक लिनेट सेफली पर्च रहती है एक लीफ पर डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसी तरीके से एक पीसफुल और लविंग पर्सन जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है डिस्पाइट ऑफ एनी ऑफ द डिफिकल्टीज. ओके, सो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मैसेज दे रहा है दैट इनर पीस इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सटर्नल एडवर्सिटी. बाहर कैसी भी एडवर्सिटी हो, लेकिन अंदर अगर आपके अंदर इनर पीस है तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे. तो इस स्टैंजा को समराइज कर देते हैं. द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन पीपल ही हैज लव्ड, जिनसे उसने प्यार किया उसके बारे में रिफ्लेक्शन है यहाँ पोएम में स्टार्टिंग में. ही फील्स दैट ब्यूटी अलोन हैज ब्रॉट लिटिल हैप्पीनेस. हेट्रेड इज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द ह्यूमन माइंड. अ पीसफुल माइंड कैन नॉट ईजिली बी डिस्ट्रॉयड एंड इनोसेंस प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सफरिंग. एनालाइज कर लेते हैं हम. Yeats connects hatred with spiritual destruction. And beauty without peace becomes meaningless. Inner calm gives strength against difficulties. Love and peace preserve innocence. And hatred destroys happiness and relationships. Literary devices देख लेते हैं. Metaphor यूज किया गया है यहाँ, जब हमने यूज किया था hatred choking the mind. So there is a metaphor here. Personification, wind attacking like a person attacks. So wind को personify किया हुआ है. सिंबलिज्म यूज किया है. लिनेट इज सिंबलाइजिंग इनोसेंस. टोन कैसा है? रिफ्लेक्टिव और फिलोसॉफिकल टोन है. देयर इज इमेजरी यूज्ड. वायलेंट विंड से हम इमेजिन कर सकते हैं वो सीन को. नाउ लेट्स रीड स्टैंजा 8. An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? Because of her opinionated mind, bartered at horn and every good, by quiet natures understood, for an old bellows full of angry wind. So here accursed means cursed, barter means exchange, and bellows means device used to blow air, the one that is shown here. Okay, so let us read line by line. An intellectual hatred is the worst. So the poet makes a strong statement that intellectual hatred is the most dangerous kind of hatred. Intellectual hatred is hatred based on rigid beliefs, ideologies, political opinions, or intellectual pride. Such hatred is often more harmful than ordinary anger because it is justified by a reason and conviction. People driven by intellectual hatred believe that they are completely right and refuses to understand others. This makes reconciliation and peace very difficult. Yeats considered this kind of hatred especially destructive because it affects both the mind and the society. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड होती है वो वर्स्ट होती है, सबसे खराब होती है. तो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड क्या होती है? इंटेलेक्चुअल हेट्रेड का क्या मतलब होता है? हेट्रेड जो कि किस पे बेस्ड है? जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड बिलीफ्स पे और अपनी आइडियोलॉजी या कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पे बेस्ड है ना. और ये ऐसी होती है ना कि ये जस्टिफाइड होती है बाय रीजन. एक कन्विक्शन होता है उनके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है
जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते, दे रिफ्यूज टू लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर्स, जिससे कि रिकॉन्साइलेशन और पीस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ये माइंड और सोसाइटी दोनों को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट लाइन इज सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। तो पोएट कह रहे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल हेट्रेड वर्स्ट होता है, इसलिए लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड। Poet prays that his daughter should not become overly attached to her opinions. The word accursed means cursed or harmful, है ना। जो अपन ओपिनियन बना लेते हैं, जो हमारा रिजिड बिलीफ बना लेते हैं कि वो जो है ओपिनियंस आर अकर्स्ड, मतलब वो बहुत हार्मफुल है। अकर्स्ड मतलब हार्मफुल है, जो हमने अपना ओपिनियन बना लिया वो बहुत हार्मफुल है। तो वो चाहता है कि उसकी डॉटर अपनी ओपिनियन से ओवरली अटैच्ड ना हो, है ना। उसे पता चलना चाहिए कि लेट हर थिंक दैट ओपिनियंस आर अकर्स्ड, कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हो तो वो बहुत हार्मफुल है। Yeats does not mean that having opinions is wrong. Rather, he warns against becoming stubborn, dogmatic and intolerant of others' viewpoints. तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ओपिनियन बनाना रॉन्ग है, अपना ओपिनियन होना रॉन्ग है, लेकिन वो वार्निंग दे रहा है किसके अगेंस्ट, कि हमें स्टबर्न नहीं बनना चाहिए, डॉगमेटिक नहीं बनना चाहिए और इनटॉलरेंट नहीं बनना चाहिए। दूसरों के व्यू पॉइंट को हम टॉलरेट ही ना करें, ऐसा नहीं बनना चाहिए हमें, ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। He wants his daughter to remain open-minded, humble and willing to listen to others. ना, तो वो अपनी चाहता है कि उसकी डॉटर ओपन माइंडेड हो, खुले दिमाग की हो, हम्बल हो और दूसरों की बातें सुने। According to Yeats, excessive attachment to one's opinion can lead to arrogance and hatred. तो अगर आप अपने ओपिनियन से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो उससे आपके अंदर प्राइड आता है, एरोगेंस आता है और हेट्रेड आती है। Have I not seen the loveliest woman born? अच्छा बच्चों, ये लाइन और जो नेक्स्ट लाइन है आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, ये दोनों लाइन्स कनेक्टेड है। तो पहले मैं ये लाइन बता देती हूँ आपको। The poet now refers to a real life example from his own experience. He recalls a woman of extraordinary beauty whom he had personally known. Many critics believe Yeats is indirectly referring to Maud Gonne, the woman he deeply loved for many years. The phrase loveliest woman born emphasizes her exceptional beauty and attractiveness. तो यहाँ वो अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से, उसके खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा है अबाउट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल वुमेन, और लोगों का मानना है कि वो इनडायरेक्टली रेफर कर रहा है इस वुमेन को जिससे वो बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, द प्लेंटीज हॉर्न रिफर्स टू द हॉर्न ऑफ प्लेंटी और कॉर्नुकोपिया। ये एक क्लासिकल सिंबल है बच्चों अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स का और गुड फॉर्च्यून का। सो द प्लेंटीज हॉर्न रिफर्स टू द हॉर्न ऑफ प्लेंटी और कॉर्नुकोपिया, a classical symbol of abundance, prosperity, blessing and good fortune. The poet suggests that this woman was blessed with every possible gift, beauty, intelligence, charm, opportunities, but she seemed to have received life's richest blessings, और उनको लाइफ की सभी richest blessings मिली थी, जैसे लाइक हॉर्न ऑफ प्लेंटी मतलब उनको ब्यूटी, इंटेलिजेंस, चार्म, अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिला था। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, लेकिन उसके ओपिनियनेटेड माइंड की वजह से बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, उसने वो हॉर्न और हर अच्छी चीज का बार्टर कर डाला। सो डिस्पाइट ऑल हर गिफ्ट्स द वुमेन possessed a strongly opinionated nature. The phrase opinionated mind refers to a person who is excessively certain that their views are correct, है ना। जिनका ओपिनियटेड माइंड होता है वो, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो व्यूज है वो ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। एंड हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और दूसरे पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। Yeats suggests that her stubbornness prevented her from fully enjoying the blessings she received. तो अब वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की जब बात कर रहे थे, बोले कि वो जो लेडी थी, ठीक है, उनके पास बहुत सारी सभी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स एंजॉय नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ हर स्टबर्ननेस, उसकी जिद की वजह से, उनके ओपिनियटेड माइंड की वजह से। दिस लाइन रीइंफोर्सेस द पोएट्स वार्निंग अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्राइड। तो ये फिर से पोएट
इस लाइन से वॉर्न कर रहा है अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्राइड. Barter that horn and every good. The word barter means to exchange something valuable for something else. The poet says that because of her stubborn opinions, she effectively traded away all her gifts and advantages. In other words, she wasted the blessing she had been given. Her rigid beliefs became more important to her than happiness, peace, or personal fulfillment. तो बच्चों आपको समझ ही आ गया होगा कि उसके ओपिनियटेड माइंड की वजह से उन्होंने वो हॉर्न और बाकी जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो सब बार्टर कर डाली. सो बिकॉज ऑफ हर स्टबन ओपिनियंस शी ट्रेडेड अवे ऑल हर एडवांटेजेस, हर गिफ्ट्स. ओके, मीन्स शी वेस्टेड ऑल हर ब्लेसिंग्स. By quiet natures understood for an old bellows full of angry wind. तो by quiet natures understood का क्या मतलब है? The blessings represented by horn of plenty are best appreciated by people with calm, gentle and balanced personality. जिन लोगों की calm, gentle और balanced personality होती है वही लोग appreciate कर सकते हैं वो blessings जो horn of plenty represent करता है. ठीक है, तो ब्लेसिंग्स को कौन लोग अप्रिशिएट करते हैं? जो काम, जेंटल और बैलेंस पर्सनालिटी वाले होते हैं. द फ्रेज क्वाइट नेचर्स रिफर्स टू इंडिविजुअल्स हु आर हम्बल, पीसफुल, पेशेंट, इमोशनली बैलेंस्ड. तो क्वाइट नेचर्स मतलब are those people who has quiet natures, who are humble, who are peaceful, who are patient and emotionally balanced. Such people understand the value life's true blessing. Yeats implies that aggressive and opinionated individuals often fail to recognize what really matters. तो जो aggressive और opinionated लोग होते हैं वो usually वो चीज़ को recognize नहीं करते हैं कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत क्या रखता है, what really matters. But by quiet natures understood. But जो quiet nature के लोग होते हैं, जो humble और peaceful लोग होते हैं, वो उन blessings को appreciate करते हैं. For an old bellows full of angry wind. The stanza ends with a striking metaphor, है ना? एक क्वेश्चन मार्क के साथ भी एंड हो रहा है और एक मेटाफर भी यूज कर रहा है. अ bellows is a device used by blacksmith to blow air into fire. Okay, so Yeats compares the woman's anger and stubborn opinions to an old bellows filled with hot air. ठीक है, तो ये एक इमेज है. देखो bellows क्या होता है बच्चों? जो ब्लैकस्मिथ यूज करते हैं, जो आग लग रही होती है उसको और भड़काने के लिए उसमें हवा ब्लो करनी पड़ती है, राइट? तो जो हवा ब्लो करता है वो जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं बेलो. ओके, सो अ बेलोस इज अ डिवाइस यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ, है ना, लोहार जो होते हैं, टू ब्लो एयर इनटू फायर. So Yeats compares women's anger and stubborn opinions to an old bellows filled with hot air. तो अगर कोई विमेन है जो एंगर से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई है, इसका ओपिनियन बहुत स्टबर्न है, बहुत रिजिड ओपिनियन वाली है, तो उसको कंपेयर किया गया है एक ओल्ड बेलो के साथ जो कि हॉट एयर उसके से फिल्ड है. सो द इमेज सजेस्ट दैट नॉइज विदाउट सब्सटेंस, एंगर विदाउट विजडम, प्राइड विदाउट वैल्यू. द फ्रेज एंग्री विंड symbolizes bitterness, resentment and destructive emotion. The poet wonders why anyone would exchange happiness and blessings for such negativity. तो यहाँ बच्चों देखो मैं समझा देती हूँ आपको. एक मेटाफर यूज किया है कि जिस तरीके से एक गुस्से वाली औरत, स्टबर्न ओपिनियन वाली औरत, है ना, सब कुछ चीज़ों को आग बना देती है ना, आग को और भड़का देती है, ठीक है, अपनी सब चीज़ें, सब ब्लेसिंग्स को जला देती है या वेस्ट कर देती है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक ओल्ड बेलो है ना, ओल्ड बेलो, ब्लैकस्मिथ का एक ओल्ड बेलो है जिसमें से हवा डालते हैं तो आग और भड़कती है, उसी तरीके से विमेन का एंगर और स्टबर्न ओपिनियन भी यही काम करते हैं, वो सब अच्छी चीज़ों को नष्ट कर देती है. तो यहाँ क्या इमेज सजेस्ट की जा रही है? नॉइज विदाउट सब्सटेंस, है ना, खाली गुस्सा लेकिन उसमें कोई दम नहीं है. एंगर विदाउट विजडम, प्राइड विदाउट वैल्यू, ये सब चीजें कुछ काम की नहीं. द फ्रेज एंग्री विंड, एंग्री विंड, गुस्से वाली हवा, क्या सिंबलाइज करती है? बिटरनेस, रिजेंटमेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस. और पोएट सोच रहा है कि क्यों कोई इंसान एक्सचेंज करेगा हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स को ऐसी नेगेटिविटी के लिए.
तो एक बार समराइज कर देते हैं स्टैंजा. Yeats believes that intellectual hatred is the worst form of hatred. He observes that strong opinions often lead to destruction of peace and happiness. Reflecting on the past, he recalls beautiful women whose arrogance led to their ruin. है ना, उनकी बर्बादी. Led to their ruin, बर्बादी. Pride and stubbornness, he notes, can erode goodness. है ना, pride और stubbornness goodness को erode कर देते, erosion ले आते हैं उसको, उसमें जंग लगा देते हैं. Moreover, he warns that angry thinking has the power to transform abundance into emptiness. ना, अगर angry thinking है तो abundance को वो emptiness में convert कर देता है, जिस तरीके से वो बेलो हवा को ब्लो करके सब चीज जला देता है, उसी तरीके से एंग्री थिंकिंग हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म abundance into emptiness. Okay, now let's analyze this stanza. In this stanza, the poet criticizes arrogance and rigid opinions. Intellectual pride creates bitterness. He emphasizes that अगर किसी के अंदर intellectual hatred या intellectual pride है तो वो bitterness लाता है. Happiness requires humility and understanding. Beauty without wisdom leads to destruction. And Yeats praises calm and gentle personalities. अब literary devices देख लेते हैं. यहाँ metaphor यूज किया है, bellows full of angry wind. I have already explained how it is. Symbolism, horn is symbolizing abundance, है ना, horn of plenty if you remember. Tone is critical. There is irony, beauty ruined by opinions. There is imagery of angry wind. Now, considering that all hatred driven hence, the soul recovers radial innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and that its own sweet will is heaven's will. She can, though every face scowl, and every windy quarter howl, or every bellows burst, be happy still. So here radical innocence means pure innocence, self-affrighting means frightening itself, and scowl means frown. So let's read each and every line. Considering that all hatred driven hence. So the phrase considering that refers to poet's previous discussion about hatred and opinionated minds. Yeats now imagines a situation where all hatred has been completely removed from a person's heart and mind. The expression driven hence means driven away or banished, chale jana. The poet believes that when hatred is eliminated, a person's true nature can emerge. Hatred acts like a poison that corrupts the soul, so removing it allows goodness and peace to flourish. So, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हेंस. कंसिडरिंग दैट मतलब वो प्रीवियस डिस्कशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ उन्होंने हेट्रेड और ओपिनियटेड माइंड्स की बात की थी पिछले स्टैंजा में. ठीक है, तो अब ये ऐसा सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जहाँ सब हेट्रेड कंप्लीटली रिमूव हो गई है एक पर्सन के हार्ट और माइंड से, है ना. ऑल हेट्रेड ड्रिवन हेंस, सभी हेट्रेड निकल चुकी है. ड्रिवन हेंस मीन्स ड्रिवन अवे और बैनिश्ड. तो पोएट बिलीव करता है कि हेट्रेड चली गई है, और जब हेट्रेड चली जाती है, हेट्रेड एलिमिनेट हो जाती है किसी के माइंड से, तभी किसी इंसान का ट्रू नेचर बाहर आता है. हेट्रेड एक्ट लाइक अ पॉइजन, एक जहर की तरह हेट्रेड एक्ट करता है जो कि हमारे सोल को, हमारे मन को करप्ट कर देता है. सो रिमूविंग इट अलाउज गुडनेस एंड पीस टू फ्लरिश. अगर हमारे अंदर से, हमारे दिल से हेट्रेड चला जाता है तो हमारे दिलों में अच्छाई और पीस फ्लरिश होती है. The soul recovers radical innocence. So once the hatred disappears, the soul regains its original purity and innocence. है ना, ये पहली लाइन से क्लियर है. Radical innocence means fundamental और deep rooted innocence, है ना. Radical का मतलब जो बहुत ही हमारा fundamental है और जो हमारे अंदर बसा हुआ है, वैसा. तो radical innocence means original innocence, purity. So Yeats is suggesting that innocence is the natural state of human soul. ना, radical innocence, a natural या fundamental है. People are not born with hatred. They acquire it through negative experiences, pride and prejudice. When hatred is removed, the soul returns to its pure and innocent condition. This innocence is not childish ignorance.
but a mature state of inner peace and goodness. तो बोलते हैं कि जब बोल रहा है ये पोएट कि जब हेट्रेड रिमूव हो जाती है तो सोल फिर से अपने वही पुराने प्योर और इनोसेंट कंडीशन में आ जाता है. लेकिन ये प्योर और इनोसेंट कंडीशन वो वाली नहीं है जो बचपन में होती थी, है ना, चाइल्ड, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है इसीलिए. अब हेट्रेड तो कैसे डेवलप हुई, जैसे जैसे नेगेटिव एक्सपीरियंस आते गए वैसे वैसे हेट्रेड डेवलप हुई जब हम बड़े होते गए, है ना. नेगेटिव एक्सपीरियंस आए, प्राइड आ गया, प्रिजुडाइज आ गया. तो अब जब वो हेट्रेड जाएगा तो वो मेच्योर स्टेट में आ जाएंगे. इनर पीस और गुडनेस जो आएगी वो चाइल्डिश इग्नोरेंस की वजह से नहीं, अब हम मेच्योर हो गए हैं और हमने ये चीज़ हटा दी है अपने सोल पे से. तो ये कैसा इनर पीस है, मेच्योर स्टेट ऑफ इनर पीस है. एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग. सो द सोल, हमारा जो दिल है, दिल नहीं कह सकते, हमारी जो आत्मा है ना, वो ग्रेजुअली लर्न करती है. द सोल ग्रेजुअली लर्न्स दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन इटसेल्फ. अंदर से ही आती है रियल खुशी. द टर्म सेल्फ डिलाइटिंग मीन्स फाइंडिंग जॉय इन वंस ओन एग्जिस्टेंस rather than depending on external sources such as wealth, beauty, fame or approval from others. Yeats believes that a person who has inner peace can experience happiness without constantly seeking validation from the outside world. है ना. तो Yeats यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ग्रेजुअली हमारा सोल क्या सीखता है कि जो सच्ची खुशी है वो अंदर से आती है, हमारे अंदर से आती है. सेल्फ डिलाइटिंग मतलब अंदर से जॉय, खुद के अंदर से डिलाइट पाना, है ना, अपने ओन एग्जिस्टेंस में जॉय को फाइंड करना, है ना. फाइंडिंग जॉय इन वंस ओन एग्जिस्टेंस रेदर देन, ना कि हमें एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करना कि हाँ भाई वेल्थ होगी तो हम खुश होंगे, या ब्यूटी होगी, या फेम होगा, या दूसरे अप्रूव करेंगे तो ही हम खुश होंगे, है ना. जिसके पास इनर पीस है वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है और कॉन्स्टेंटली दूसरों से वैलिडेशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती है. सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अफ्राइटिंग. द सोल इज केपेबल ऑफ कामिंग इटसेल्फ एंड ऑल्सो फ्राइटनिंग इटसेल्फ. सो सेल्फ अपीजिंग का क्या मतलब है? सेल्फ अपीजिंग मीन्स कंफर्टिंग वन सेल्फ या फाइंडिंग इनर पीस या रिजॉल्विंग वंस ओन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. और सेल्फ अफ्राइटिंग का मतलब है क्रिएटिंग ओन्स फियर, है ना. सेल्फ अपीजिंग में तो फाइंडिंग इनर पीस, अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को हटा के इनर पीस ले आना, है ना, रिजॉल्व कर लेना अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को. और सेल्फ अफ्राइटिंग, फ्राइटनिंग देखो वर्ड है. सो खुद के फियर क्रिएट करना, है ना, कुछ भी चीज़ें इमेजिन करते जाना और अपने आप को डिस्टर्ब करना. सो डिस्टर्बिंग वनसेल्फ थ्रू इमेजिनेशन और एंजाइटी. Yeats is emphasizing that many of our emotions originate within ourselves rather than from external circumstances. Human beings possess the power both to comfort and to trouble themselves. कि हम जो ये सोचते हैं ना, ये सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अफ्राइटिंग होता है, ठीक है, कि हम खुद ही अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं और हम खुद ही अपने आप के फियर को डेवलप कर सकते हैं ना. खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं हम अपने इमेजिनेशन से. तो यीट्स बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी इमोशंस है ना, सेल्फ अपीजिंग हो या सेल्फ अफ्राइटिंग हो, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हमारे खुद के अंदर से, ना कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस से, है ना. हमारे पास पावर है, दोनों चीज़ों का पावर है, अपने आप को कंफर्ट करने का और अपने आप को ट्रबल करने का. And that its own sweet will is heaven's will. And this is one of the most philosophical lines in the poem. Yeats suggests that a pure and innocent soul naturally desires what is good and right. The phrase its own sweet will refers to genuine desires of a soul that is free from hatred and corruption. Such a soul is in harmony with heaven's will, that is, with divine goodness and moral truth. The poet implies that when a person achieves inner purity, their wishes align with God's purpose. सिर्फ ये लास्ट लाइन ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना, कि जो इंसान, हमने अभी पढ़ा कि सब चीज़ अपने अंदर ही है ना, जो हम चाहते हैं वो ही होता है एक्चुअली. एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवेंस विल, है ना, कि अगर हमने इनर प्योरिटी पाली, हमने हेट्रेड हटा दिए, तो हमारे जितने भी विशेज हैं, हम जो भी चाहते हैं, आवर ओन विशेज, दे अलाइन विथ गॉड्स पर्पस. जो गॉड चाहता है उसके साथ ही अलाइन हो जाता है वो चीज़ें ना. जो भी चीज़ हमारे जेन्युइन डिज़ायर है हमारे सोल के,
और अगर हमारा सोल हेट्रेड और करप्शन से फ्री है तो सच सोल इज इन हार्मनी विथ हेवेंस विल। तो ऐसा सोल हेवेंस विल मतलब गॉड की इच्छा या गॉड के पर्पस के साथ हार्मनी में है, मतलब उसके साथ अलाइन करता है। ठीक है। शी कैन दो एवरी फेस स्काउल। The poet now applies this idea to his daughter. If she possesses inner peace and innocence, she will remain happy even when other people are angry, critical, or hostile. The word scowl refers to an angry or disapproving facial expression. Yeats wants his daughter to be emotionally independent rather than relying on others' approval. तो अभी यहाँ तक तो ये देखो पोएट बात कर रहे थे कि क्या होता है एक्चुअली। अब वो अपनी डॉटर से रिलेट कर रहे हैं, ये आइडिया अपने डॉटर पे रिलेट कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि शी कैन, वो अपना हेवेंस विल के साथ गॉड के पर्पस के साथ अलाइन कर सकती है। ठीक है। और इवन दो एवरी फेस इज काउलिंग, बाकी दूसरे सब कुछ भी करे, है ना, दूसरे लोग अप्रूव करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द पोएट नाउ अप्लाइज दिस आइडिया टू द डॉटर कि अगर वो पजेस करती है इनर पीस और इनोसेंस तो वो हमेशा खुश रहेगी, इवन दो दूसरे लोग एंग्री है, क्रिटिकल है, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हॉस्टाइल है। ठीक है। तो स्काउल तो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, मैंने पहले ही वर्ड मीनिंग में आपको बता दिए, जो मतलब चिड़ा हुआ या डिसअप्रूव किया हुआ फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो यीट्स चाहता है कि मेरी डॉटर जो है इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और दूसरों के अप्रूवल पे रिलाय ना करे। एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल। द विंडी क्वार्टर रिफर्स टू एवरी डायरेक्शन फ्रॉम विच स्टॉर्म्स एंड विंड्स मे कम। Symbolically, it represents all forms of adversity, social criticism, political turmoil, personal difficulties, emotional struggles, everything. Okay? So, winds, देखो विंडी क्वार्टर मतलब हर एक वो क्वार्टर, मतलब देखो 4 क्वार्टर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। सो एवरी डायरेक्शन फ्रॉम विच स्टॉर्म्स एंड विंड्स में कम, विंडी क्वार्टर। सिंबलिकली इट रिप्रेजेंट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्सिटी, कोई भी फॉर्म कहीं चारों तरफ से कहीं से भी किसी भी तरह की एडवर्सिटी आए, विंड मतलब एडवर्सिटी, क्वार्टर बता रहा है कि डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से, तो किसी भी तरह की एडवर्सिटी आए, जैसे कि सोशल क्रिटिसिज्म है ना, सोसाइटी में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है आपके रीजन में, या कोई पर्सनल डिफिकल्टीज है, या कोई इमोशनल स्ट्रगल है, ये सब एडवर्सिटी है। ठीक है। The howl recalls the storm imagery from the beginning of the poem, है ना। हाउल फिर से वो रिकॉल करा रहा है जो शुरू से हमने इमेजरी की है पोएम में, कि कैसे स्टॉर्म आ रहा है वगैरह। Even if the entire world seems hostile and chaotic, the poet hopes his daughter will remain calm. तो बोल रहा है कि and every windy quarter howl, है ना, ये पीछे से कनेक्टेड है देखो लाइन। She can though every face scowl एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल, चाहे लोग कैसे भी फेशियल एक्सप्रेशन बनाए या कैसे भी एडवर्सिटी आए, वो हमेशा खुश रहेगी, हमेशा काम रहेगी। और एवरी बेलोज बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल, या सभी बेलो बर्स्ट हो जाए तो भी वो खुश रहेगी। बेलोज रिफर्स बैक टू मेटाफर इन द प्रीवियस स्टैंजा। हियर द बेलो सिंबलाइज्ड एंग्री एंड ओपिनियटेड पीपल फुल ऑफ हेट्रेड एंड बिटरनेस। हमने बेलोज कर ही लिया था। बेलोज क्या होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे गुस्से और वाले और ओपिनियटेड लोग जो हमेशा नफरत और बिटरनेस से फुल होते हैं, है ना। चाहे वो सब बर्स्ट हो जाए तो भी वो हैप्पी रहेगी। Even if all those bellows burst, meaning even if the world is filled with anger, conflict and emotional turmoil, the poet hopes his daughter will continue to remain happy. The final phrase, be happy still, expresses Yeats' deepest wish that his daughter's happiness should come from within and not depend on external circumstances. Summarize कर लेते हैं स्टैंजा को। When hatred disappears, the soul regains its innocence, allowing human beings to become peaceful and content. In this state, the soul learns to find happiness within itself, making it resilient against external difficulties that might otherwise disrupt inner peace. The poet believes that self-contentment is the key to true happiness. So that is how we will summarize this. एक बार analyze कर लेते हैं। Yeats values spiritual peace and innocence. Then happiness depends on inner peace. Self-awareness helps human beings remain calm. So this stanza emphasizes emotional independence. True peace comes from within. Let's look at the literary devices now.
There's repetition here. Self-delighting, self-appeasing. Then symbolism is seen when we compare innocence. Alliteration, windy quarter howl. Tone is calm and philosophical. There's an imagery of storm world versus peaceful soul. Now let's look at stanza 10. And may her bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonious. For arrogance and hatred are the wares, peddled in the thoroughfares. How but in custom and in ceremony are innocence and beauty born. Ceremony is a name for the rich horn, and custom for the spreading laurel tree. So here ceremonious means following traditions, wares means goods, and thoroughfares means busy streets. So let's read each and every line. And may her bridegroom bring her to a house. So the poet now looks ahead to his daughter's future married life. He prays that when she gets married, her husband, that is the bridegroom, will bring her to a good and happy home. The word house here means more than a physical building. It symbolizes family life, stability, security, love, and social harmony. So Yeats hopes that his daughter will find happiness in a stable domestic environment. So बच्चों अब क्या हो रहा है? A poet उसकी फ्यूचर मैरिड लाइफ की तरफ देख रहा है ना, वो इमेजिन कर रहा है और प्रे कर रहा है कि जब उसकी शादी हो तो उसका हस्बैंड उसको एक इतने अच्छे और हैप्पी होम में ले जाए. यहाँ पे हाउस वर्ड स्पेशली यूज किया है, जबकि बहुत सारे दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन हाउस इज मोर देन अ फिजिकल बिल्डिंग. तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? हाउस एक फैमिली लाइफ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लव और सोशल हार्मनी. और वो होप कर रहा है कि उसकी डॉटर को खुशियां मिले एक स्टेबल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में. वेयर ऑल्स अकस्टम्ड सेरेमोनियस. द पोएट विशेस दैट होम शुड बी गवर्न्ड बाय ट्रेडिशन, गुड मैनर्स एंड एस्टेब्लिश्ड कस्टम. जो जैसे हमारे कस्टम्स होते हैं, है ना, वैसे उसका घर चले, है ना, ट्रेडिशन से, गुड मैनर्स से, और जो बरसों से बनाए हुए कस्टम है, हमारी जो परंपराएं हैं, वैसे चले. अकस्टम्ड मीन्स फेमिलियर, ट्रेडिशनल, वेल एस्टेब्लिश्ड. और सेरेमनियस का क्या मतलब होता है? पोलाइट, रिस्पेक्टफुल या फॉर्मल इन अ पॉजिटिव सेंस. ये दोनों के मीनिंग्स आपको बच्चों अच्छे से याद कर लेने हैं और अच्छे से इसको रिमेंबर करना है. प्लीज नोट्स मैंने दे रखे हैं, ऑलरेडी पिन कर रखे हैं, गूगल ड्राइव लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से नोट्स निकाल लेना. लेकिन आप खुद के भी नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है. अकस्टम्ड का मीन्स फैमिलियर, ट्रेडिशनल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड. और सेरेमोनियस का मतलब है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, फॉर्मल इन अ पॉजिटिव सेंस. सो Yeats बिलीव दैट ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स, है ना, ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ. A household where people respect customs and behave courteously creates an atmosphere of peace and mutual respect. तो वो उसका घर, फ्यूचर का घर कैसा होगा वो भी पूरा इमेजिन कर रहा है कि सभी चीजें अकस्टम्ड होगी, सेरेमनियस होगी. For arrogance and hatred are the wares. So poet now contrasts the beautiful home, the peaceful home with the outside world. The word wares means goods or merchandise that are bought and sold. चीजें जो बाहरी दुनिया की चीजें होती हैं ना, दिखावे वाली चीजें, merchandise, कोई भी फिजिकल चीजें, ठीक है. Yeats metaphorically suggests that arrogance and hatred have become common commodities in the society. Wares हो गए, goods हो गई है, क्या, hatred और arrogance, मतलब वो सब जगह है, कॉमन कम्युनिटी हो गई, कॉमन गुड्स हो गए. दे आर एवरीवेयर एंड आर इजीली स्प्रेड अमंग पीपल. बहुत सारे लोग हेट्रेड से भरे हुए हैं, सब जगह आप ऐसे ही लोग देखोगे. द लाइन रिफ्लेक्ट्स हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड विच ही सीज एज इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय प्राइड, कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटरनेस. इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है मॉडर्न वर्ल्ड में. क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि एरोगेंस और हेट्रेड आर द वेयर्स, मतलब एरोगेंस और हेट्रेड हर जगह आपको मिल जाएगा इस मॉडर्न वर्ल्ड में. पेडल्ड इन द थरोफेयर्स. अ पेडलर इज समवन हु ट्रेवल्स अराउंड सेलिंग गुड्स, है ना, हर जगह वो बुक्स ले लेके जाता है, पेडलर. अ पेडलर इज समवन हु ट्रेवल्स अराउंड सेलिंग बुक्स.
थरोफेयर्स मीन्स पब्लिक स्ट्रीट्स, बिजी रोड्स, अब जो रास्ते हैं उसे थरोफेयर्स कहते हैं, ठीक है। प्लेसेस वेयर पीपल गैदर, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। Yeats imagines arrogance and hatred being sold openly in the streets like ordinary products. तो Yeats क्या इमेजिन कर रहा है? एरोगेंस और हेट्रेड ऐसे कोई पेडलर बेच रहा है रास्तों में. This is a powerful metaphor suggesting that negative emotions have become widespread and socially accepted. The poet contrasts this corrupt public world with the peaceful household he wishes for his daughter. तो पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स मतलब ये जो नेगेटिविटी है, जो हेट्रेड है, जो एरोगेंस है, वो हर जगह ऐसे ही जनरली लोग बेचते हैं, है ना, वाइड स्प्रेड है, सोशली एक्सेप्टेड है ये इमोशंस. तो ये फिर से कंपेयर हो रहा है वो पीसफुल वर्ल्ड जिसमें वो चाहता है अपनी डॉटर रहे, और वो करप्ट पब्लिक वर्ल्ड जिसमें आजकल के लोग रह रहे हैं. हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी. सो पोएट आस्क a rhetorical question. He wonders how can important human qualities develop except through customs and ceremonies. है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से कि इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्वालिटीज कैसे डेवलप होगी ऐसे जमाने में, ऐसे मॉडर्न एरा में, ओनली थ्रू कस्टम्स एंड सेरेमनीज. कस्टम और सेरेमनी के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि है ना इम्पोर्टेंट क्वालिटी को डेवलप करेगी. So Yeats believes that traditions teach people respect, discipline, good manners, social responsibility. According to him, customs help preserve the values that make civilized life possible. तो इनके अकॉर्डिंगली वो बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशन ही ऐसी चीज है जो लोगों को रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें सिखाती है. ठीक है, तो कस्टम ही है जो प्रिजर्व करती है वैल्यूज, जिसकी वजह से एक सिविलाइज्ड लाइफ पॉसिबल हो सकती है. सो हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी. तो कैसे होगा ये? ओनली पॉसिबल थ्रू कस्टम और सेरेमनी. आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, है ना. तो ये लाइन कनेक्टेड है कि कैसे होगा ये इनोसेंस और ब्यूटी कैसे आएगी? ओनली थ्रू कस्टम एंड सेरेमनी. So Yeats argues that innocence and true beauty flourish in an environment shaped by tradition and proper conduct. The word beauty here does not merely mean physical attractiveness. It refers to inner beauty, moral goodness, grace, character. So the poet believes that customs and traditions help nurture these values. Without such foundations, innocence and beauty may disappear from the society. तो Yeats ये कह रहा है कि सिर्फ custom और tradition से ही ये innocence और beauty फ्लरिश करेगी इस एनवायरनमेंट में. तो इनोसेंस तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है. ब्यूटी से इसका मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस नहीं है, इसका मतलब है मॉरल गुडनेस, ग्रेस, कैरेक्टर. तो पोएट ये बिलीव करते हैं कि जितने भी कस्टम और ट्रेडिशंस है वो ही नर्चर करते हैं इन वैल्यूज को, और इन फाउंडेशंस के बिना इनोसेंस और ब्यूटी सोसाइटी से डिसअपियर हो जाएगी. सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न. So the rich horn refers to horn of plenty, है ना, कॉर्नुकोपिया. फिर से हॉर्न की, जब भी हॉर्न की बात यहाँ पे आएगी इस पोएम में, तो इट इज टॉकिंग अबाउट हॉर्न ऑफ प्लेंटी, a classical symbol of abundance, prosperity, blessings and good fortune. I am repeating this line again and again क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये एक लाइन पे या दो लाइन पे पूछा तो आपको फिर से पूरा लिखना होगा हॉर्न ऑफ प्लेंटी के. ठीक है, तो रिच हॉर्न, सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न. तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो रिच है, रिच हॉर्न का मतलब बताया. और फिर Yeats states that ceremony is another name for this rich horn because ceremonies enrich human life. Through ceremonies and traditions, people inherit values, culture, stability, social harmony. Just as the horn of plenty provides abundance, ceremonies provide moral. तो जिस तरीके से एक क्लासिकल सिंबल है abundance का, prosperity का, plenty, उसी तरीके से ceremony also brings or also provide the moral and cultural wealth to us. Okay, तो ceremony एक दूसरा नाम है इसका. And custom for the spreading laurel tree. The poet ends with another powerful symbol. Laurel tree हमने पहले भी पढ़ रखा है. The laurel tree has already appeared earlier in the poem. It symbolizes stability, honor, endurance, growth and peace. So the phrase spreading laurel tree suggests something strong, डीपली रूटेड एंड कंटिन्यूली ग्रोइंग, है ना. स्प्रेडिंग, हम कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है ये चीज, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और डीपली रूटेड है. ठीक है,
तो बहुत कंटिन्यूली ग्रो करती हुई स्टेबिलिटी. So Yeats compare custom to the laurel tree because traditions provide a firm foundation that supports and nourishes human life across generations. The image leaves the reader with a sense of permanence, harmony and hope. तो यहाँ पे एक और इन्होंने कंपैरिजन बताया है. इन्होंने कस्टम को लॉरेल ट्री के साथ या कस्टम को लॉरेल ट्री के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि ट्रेडिशन भी उसी तरीके से फर्म फाउंडेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके से लॉरेल ट्री प्रोवाइड, और यही कस्टम एक ह्यूमन लाइफ को नरिश करते हैं जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस. So let's summarize. The poet wishes his daughter a peaceful married life, valuing traditions, customs, and ceremonies. While society often spreads arrogance and hatred, the poet believes that customs and traditions preserve innocence and beauty. The poem concludes with a hopeful vision for stability and harmony. Let's analyze. Yeats praises tradition and social order. Ceremony symbolizes culture and refinement. Laurel tree symbolizes rootedness and continuity. Innocence survives through stable family life. And the ending reflects hope and optimism. Let's see the literary devices that are used here in this stanza. Symbolism, laurel tree and rich horn. इन दोनों एग्जाम्पल से symbolism यूज किया है. Alliteration, custom and ceremony, C. Tone is hopeful and philosophical. There is a metaphor, customs as roots of society. There is an imagery of peaceful household. So let's conclude now in the end. The poem is both a father's prayer and a philosophical reflection of life. So this is the whole, you can say, conclusion or summary of the poem. Yeats emphasizes inner beauty, kindness, peace, humility and innocence. The poem criticizes vanity, hatred, arrogance and excessive pride. Nature and mythology are used to express deep emotional and moral ideas. The poem remains timeless because of its universal message about parenthood and values. So that was all about this poem. I hope you liked it. You liked the explanation, because this is a very important poem from board point of view and you will get many important questions. That is why I took each and every line and explained it to you. The notes are given in the notes section. You can also visit my website to have detailed notes and also important question and answers. Thank you. Do not forget to subscribe and share with your friends. Yeats values spiritual peace and innocence. Then happiness depends on inner peace. Self-awareness helps human beings remain calm. So this stanza emphasizes emotional independence. True peace comes from within. Let's look at the literary devices now. There is repetition here. Self-delighting, self-appeasing. Then symbolism is seen when we compare innocence. Alliteration, windy quarter howl. Tone is calm and philosophical. There is an imagery of storm world versus peaceful soul. Now let's look at stanza 10. And may her bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonious. For arrogance and hatred are the wares, peddled in the thoroughfares. How but in custom and in ceremony are innocence and beauty born. Ceremonies a name for the rich horn, and custom for the spreading laurel tree. So here ceremonious means following traditions, wares means goods, and thoroughfares means busy streets. So let's read each and every line. And may her bridegroom bring her to a house. So the poet now looks ahead to his daughter's future married life. He prays that when she gets married, her husband, that is the bridegroom, will bring her to a good and happy home. The word house here means more than a physical building. It symbolizes family life, stability, security,
love, and social harmony. So Yeats hopes that his daughter will find happiness in a stable domestic environment. So बच्चों अब क्या हो रहा है, अब पोएट उसकी फ्यूचर मैरिड लाइफ की तरफ देख रहा है ना, वो इमेजिन कर रहा है और प्रे कर रहा है कि जब उसकी शादी हो तो उसका हस्बैंड उसको एक इतने अच्छे और हैप्पी होम में ले जाए. यहाँ पे हाउस वर्ड स्पेशली यूज किया है, जबकि बहुत सारे दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन हाउस इज मोर देन अ फिजिकल बिल्डिंग. तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, हाउस एक फैमिली लाइफ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लव और सोशल हार्मनी. और वो होप कर रहा है कि उसकी डॉटर को खुशियां मिले एक स्टेबल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में. वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमोनियस. The poet wishes that home should be governed by tradition, good manners and established custom. जो जैसे हमारे कस्टम्स होते हैं, है ना, वैसे उसका घर चले, है ना, ट्रेडिशन से, गुड मैनर्स से, और जो बरसों से बनाए हुए कस्टम है, हमारी जो परंपराएं हैं, वैसे चले. Accustomed means familiar, traditional, well established. और सेरेमनियस का क्या मतलब होता है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल या फॉर्मल इन अ पॉजिटिव सेंस. ये दोनों के मीनिंग्स आपको बच्चों अच्छे से याद कर लेने हैं और अच्छे से इसको रिमेंबर करना है. प्लीज नोट्स मैंने दे रखे हैं, ऑलरेडी पिन कर रखे हैं, गूगल ड्राइव लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से नोट्स निकाल लेना. लेकिन आप खुद के भी नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है. अकस्टम्ड का मीन्स फैमिलियर, ट्रेडिशनल एंड वेल स्टैब्लिश्ड, और सेरेमोनियस का मतलब है polite, respectful, formal in a positive sense. So Yeats believed that traditions and social customs, है ना, traditions और social custom provide करते हैं order and stability in life, है ना. A household where people respect customs and behave courteously creates an atmosphere of peace and mutual respect. तो वो उसका घर, फ्यूचर का घर कैसा होगा वो भी पूरा इमेजिन कर रहा है कि सभी चीजें अकस्टम्ड होगी, सेरेमनियस होगी. For arrogance and hatred are the wares. So poet now contrasts the beautiful home, the peaceful home with the outside world. The word wares means goods or merchandise that are bought and sold. चीजें जो बाहरी दुनिया की चीजें होती हैं, है ना, दिखावे वाली चीजें, मर्कंडाइज, कोई भी फिजिकल चीजें, ठीक है. Yeats metaphorically suggests that arrogance and hatred have become common commodities in the society. Wares हो गए, goods हो गई है, क्या, hatred और arrogance, मतलब वो सब जगह है, कॉमन कम्युनिटी हो गई, कॉमन गुड्स हो गए. दे आर एवरीवेयर एंड आर इजिली स्प्रेड अमंग पीपल. बहुत सारे लोग हेट्रेड से भरे हुए, सब जगह आप ऐसे ही लोग देखोगे. द लाइन रिफ्लेक्ट्स हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड विच ही सीज एज इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय प्राइड, कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटरनेस. इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है मॉडर्न वर्ल्ड में. क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि, एरोगेंस और हेट्रेड आर द वेयर्स, मतलब एरोगेंस और हेट्रेड हर जगह आपको मिल जाएगा इस मॉडर्न वर्ल्ड में. पेडल्ड इन द थरोफेयर्स. अ पेडलर इज समवन हु ट्रेवल्स अराउंड सेलिंग गुड्स, है ना, हर जगह वो बुक्स ले लेके जाता है, पेडलर. अ पेडलर इज समवन हु ट्रेवल्स अराउंड सेलिंग बुक्स. थरोफेयर्स मीन्स पब्लिक स्ट्रीट्स, बिजी रोड्स. अब जो रास्ते हैं उसे थरोफेयर्स कहते हैं, ठीक है. प्लेसेस वेयर पीपल गैदर, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं. Yeats imagines arrogance and hatred being sold openly in the streets like ordinary products. तो Yeats क्या इमेजिन कर रहा है, एरोगेंस और हेट्रेड ऐसे कोई पेडलर बेच रहा है रास्तों में. This is a powerful metaphor suggesting that negative emotions have become widespread and socially accepted. The poet contrasts this corrupt public world with the peaceful household he wishes for his daughter. तो पेडल्ड इन द थरोफेयर्स मतलब ये जो नेगेटिविटी है, जो हेट्रेड है, जो एरोगेंस है, वो हर जगह ऐसे ही जनरली लोग बेचते हैं, है ना, वाइड स्प्रेड है, सोशली एक्सेप्टेड है ये इमोशंस. तो ये फिर से कंपेयर हो रहा है वो पीसफुल वर्ल्ड जिसमें वो चाहता है अपनी डॉटर रहे, और वो करप्ट पब्लिक वर्ल्ड जिसमें आजकल के लोग रह रहे हैं. हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी. सो पोएट आस्क a rhetorical question. He wonders how can important human qualities develop except through customs and ceremonies. है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से कि
इंपॉर्टेंट ह्यूमन क्वालिटीज कैसे डेवलप होगी ऐसे जमाने में, ऐसे मॉडर्न एरा में? ओनली थ्रू कस्टम्स एंड सेरेमनीज। कस्टम और सेरेमनी के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि है ना इंपॉर्टेंट क्वालिटी को डेवलप करेगी? तो यीट्स बिलीव्स दैट ट्रेडिशंस टीच पीपल रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम कस्टम्स हेल्प प्रिजर्व द वैल्यूज दैट मेक सिविलाइज्ड लाइफ पॉसिबल। तो इनके अकॉर्डिंगली वो बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशन ही ऐसी चीज है जो लोगों को रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, गुड मैनर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें सिखाती है। ठीक है, तो कस्टम ही है जो प्रिजर्व करती है वैल्यूज, जिसकी वजह से एक सिविलाइज्ड लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सो हाउ? बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी। तो कैसे होगा ये? ओनली पॉसिबल थ्रू कस्टम और सेरेमनी। आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, है ना? तो ये लाइन कनेक्टेड है कि कैसे होगा ये इनोसेंस और ब्यूटी कैसे आएगी? ओनली थ्रू कस्टम एंड सेरेमनी। So Yeats argues that innocence and true beauty flourish in an environment shaped by tradition and proper conduct. The word beauty here does not merely mean physical attractiveness. It refers to inner beauty, moral goodness, grace, character. So the poet believes that customs and traditions help nurture these values. Without such foundations, innocence and beauty may disappear from the society. तो Yeats ये कह रहा है कि सिर्फ कस्टम और ट्रेडिशन से ही ये इनोसेंस और ब्यूटी फ्लरिश करेगी इस एनवायरनमेंट में। तो इनोसेंस तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ब्यूटी से इसका मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस नहीं है, इसका मतलब है मॉरल गुडनेस, ग्रेस, कैरेक्टर। तो पोएट ये बिलीव करते हैं कि जितने भी कस्टम और ट्रेडिशन है वो ही नर्चर करते हैं इन वैल्यूज को, और इन फाउंडेशंस के बिना इनोसेंस और ब्यूटी सोसाइटी से डिसअपियर हो जाएगी। सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न। So the rich horn refers to horn of plenty, है ना, कॉर्नुकोपिया। फिर से हॉर्न की, जब भी हॉर्न की बात यहाँ पे आएगी इस पोएम में, तो इट इज टॉकिंग अबाउट हॉर्न ऑफ प्लेंटी, अ क्लासिकल सिंबल ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्च्यून। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये एक लाइन पे या दो लाइन पे पूछा तो आपको फिर से पूरा लिखना होगा हॉर्न ऑफ प्लेंटी के। ठीक है, तो रिच हॉर्न, सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो रिच है, रिच हॉर्न का मतलब बताया है, और फिर it states that ceremony is another name for this rich horn because ceremonies enrich human life. Through ceremonies and traditions, people inherit values, culture, stability, social harmony. Just as the horn of plenty provides abundance, ceremonies provide moral. तो जिस तरीके से एक क्लासिकल सिंबल है abundance का, prosperity का, plenty, उसी तरीके से ceremony also brings or also provide the moral and cultural wealth to us. Okay, तो ceremony एक दूसरा नाम है इसका। And custom for the spreading laurel tree. The poet ends with another powerful symbol. Laurel tree हमने पहले भी पढ़ रखा है। The laurel tree has already appeared earlier in the poem. It symbolizes stability, honor, endurance, growth and peace. So the phrase spreading laurel tree suggests something strong, डीपली रूटेड एंड कंटिन्यूअली ग्रोइंग, है ना, स्प्रेडिंग, हम कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है ये चीज, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और डीपली रूटेड है। ठीक है, तो बहुत कंटिन्यूअली ग्रो करते हुई स्टेबिलिटी। सो Yeats कंपेयर कस्टम टू द लॉरेल ट्री बिकॉज ट्रेडिशंस प्रोवाइड अ फर्म फाउंडेशन that supports and nourishes human life across generations. The image leaves the reader with a sense of permanence, harmony and hope. तो यहाँ पे एक और इन्होंने कंपैरिजन बताया है, इन्होंने कस्टम को लॉरेल ट्री के साथ या कस्टम को लॉरेल ट्री के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि ट्रेडिशन भी उसी तरीके से फर्म फाउंडेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके से लॉरेल ट्री प्रोवाइड, और यही कस्टम एक ह्यूमन लाइफ को नरिश करते हैं जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। So let's summarize. The poet wishes his daughter a peaceful married life, valuing traditions, customs and ceremonies. While society often spreads arrogance and hatred, the poet believes that customs and traditions preserve innocence and beauty. The poem concludes with a hopeful vision for stability and harmony. Let's analyze. Yeats praises tradition and social order. Ceremony symbolizes culture and refinement.
Laurel tree symbolizes rootedness and continuity. Innocence survives through stable family life. And the ending reflects hope and optimism. Let's see the literary devices that are used here in this stanza. Symbolism, laurel tree and rich horn. इन दोनों एग्जाम्पल से सिंबलिज्म यूज किया है. Alliteration, custom and ceremony. C. Tone is hopeful and philosophical. There is a metaphor, customs as roots of society. There is an imagery of peaceful household. So let's conclude now in the end. The poem is both a father's prayer and a philosophical reflection of life. So this is the whole, you can say, conclusion or summary of the poem. Yeats emphasizes inner beauty, kindness, peace, humility and innocence. The poem criticizes vanity, hatred, arrogance and excessive pride. Nature and mythology are used to express deep emotional and moral ideas. The poem remains timeless because of its universal message about parenthood and values. So that was all about this poem. I hope you liked it. You liked the explanation, because this is a very, very important poem from board point of view and you will get many important questions. That is why I took each and every line and explained it to you. The notes are given in the notes section. You can also visit my website to have detailed notes and also important question and answers. Thank you. Do not forget to subscribe and share with your friends.